Good morning, champions. Good morning. आवाज येतोय माझा? Good morning. Oh, so we are dealing with topic digestion and absorption, and in which we are dealing with the anatomy of the alimentary canal. In previous lectures, we discussed about the different part of alimentary canal from mouth up to the stomach and small intestine. So दोस्तों ये एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है जिसका एंटीरियर एंड है माउथ, पोस्टीरियर एंड है एनस, और इसके बीच में डिफरेंट पार्ट होते हैं और वही डिफरेंट पार्ट जो है दे हेल्प इन डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड व्हिच इंक्लूड्स माउथ, उसके बाद ओरल कैविटी, उसके बाद फायरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस. So in last lecture, we discussed about the structure of stomach. Stomach is a J-shaped bag-like structure. It consists of four parts: fundic, cardiac, body, and pylorus. Fundic is the uppermost part. Cardiac is the part where esophagus open. Body is the main central part of stomach, and pylorus is the part which open into duodenum. And stomach secretes enzymes which causes the digestion of those the protein and lipids, and then that semi-digested food enter into the intestine. At stomach, there are two sphincter is present at the upper and lower part of stomach. One is the gastroesophageal sphincter present between esophagus and stomach, and which prevent the backward flow of gastric juice into esophagus. Another sphincter called as a pyloric sphincter is present between stomach and duodenum. Duodenum is the first part of intestine, small intestine, and it prevents the backward flow of food from duodenum into stomach. That gastroesophageal sphincter is also called as a cardiac sphincter, as esophagus open into the cardiac part of stomach. Now, फिर हमने देखा small intestine. Small intestine, the longest part of the
elementary canal measuring about 6 meters in length, and it consists of 3 parts. DJI means duodenum, jejunum, and ileum. What is duodenum? Duodenum is a C-shaped part, okay, and stomach open into the duodenum. It is the first part of small intestine. It is mainly involved in digestion. D for duodenum, D for digestion. Jejunum is दोस्तों, it is long, coiled and middle part of the small intestine. It is the second part of small intestine, and it is mainly involved in absorption. Then ileum. Ileum is a highly coiled and terminal part of small intestine, also called the third part of small intestine. This is the longest part, and which open into the cecum via ileocecal wall. Or ileum is also involved in absorption of food. So main function of duodenum is digestion, and main function of jejunum and ileum is the absorption. Now, what is cecum? Cecum is the part of large intestine. तो याद रखो, there are 2 type of ileum. One is the E वाला ileum, another is the I वाला ileum. These are the 2 confuser. Ileum जिसमें E है, that is the terminal part of small intestine, और जो दूसरा ileum है जिसमें I है, that is the part of दोस्तों hip bone और innominate bone और coxal bone. Okay, सब ठीक है? Now please pay attention. आज हम देखने वाले हैं, that is slide number 1, the concept of large intestine. Why it is called as a large? Because it has a large diameter. Large intestine. Large intestine. Okay. Equality is a large because it has a large diameter. Small intestine is called as a small because small intestine has a small diameter. Large intestine दोस्तों याद रखो. It is named so. ये भी क्वेश्चन आएगा. It is named so. हमेशा खुद को एक क्वेश्चन पूछो कि इस स्ट्रक्चर को ऐसा नाम क्यों है, इस सेल का ये नाम क्यों है, क्योंकि उस नाम में कुछ काम छुपा है या कुछ उसका स्ट्रक्चर छुपा है. ये उसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है. So it is named so as it has large diameter और large lumen या फिर diameter. इसका डायमीटर या फिर ल्यूमन मींस जो कैविटी है वो बड़ी है, इसलिए इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज नेम्ड सो, इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल. इट इज नेम्ड सो as means because as it has दोस्तों small diameter, as it has a small diameter और lumen, small diameter, या फिर उस डायमीटर को ही कहा जाता है, उस कैविटी को कहा जाता है ल्यूमन. उस कैविटी को क्या बोला जाता है दोस्तों? ल्यूमन. तो याद रखो. नाउ ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें ना अलग अलग पार्ट होते हैं. मैं आपको डायग्राम निकाल के दिखाता हूं. ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है दोस्तों, ओके, कि मान लो ये एक ब्लाइंड सैक है. ब्लाइंड सैक मींस एक साइड से बंद है, इसलिए ब्लाइंड सैक कहा गया है. ओके, ब्लाइंड सैक है. इसमें क्या ओपन होता है? इस ब्लाइंड सैक में दोस्तों, इसमें ओपन होता है दैट इज इलियम. मान लो ये है इलियम. इलियम इसमें ओपन हो गया. नाउ यहां पे ये है सीकम, और लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: cecum, colon and rectum. CCR, cecum, colon and rectum. Colon is the longest part, और colon के 4 टाइप है दोस्तों, और चार इसमें डिवाइड हुआ है colon. एक है मान लो दैट इज ascending colon. हॉस्टोरिया बोलते हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूं इसे कहा जाता है हॉस्टोरिया, द इंटीरियर सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. मान लो ये है ascending colon, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसलिए ascending colon. ये है दोस्तों ट्रांसवर्स कोलॉन, क्योंकि ये ट्रांसवर्सली रन हो रहा है इसलिए इसका नाम है दोस्तों ट्रांसवर्स कोलॉन. क्या है ये? ट्रांसवर्स कोलॉन. ये है ट्रांसवर्स कोलॉन. फिर इसके बाद आता है डिसेंडिंग कोलॉन, ये लेफ्ट साइड में होगा. ये है दोस्तों डिसेंडिंग कोलॉन. ये है डिसेंडिंग कोलॉन, और इस डिसेंडिंग कोलॉन के बाद एक यस शेप्ड स्ट्रक्चर आता है जिसे कहते हैं दोस्तों, ये जो यस शेप्ड कोलॉन है इसे कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन. इसे कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन. फिर उसके बाद एक रेक्टम, और फिर दोस्तों ये है
एनस, ये है एनस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, याद रखो। नाउ दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस पार्ट इज नेम्ड एज सीकम, इसे कहा जाता है सीकम। एक ब्लाइंड सैक है जिसमें, ब्लाइंड मींस एक ही साइड से ओपन है, इस साइड से, जिसमें दोस्तों, और एक साइड से क्लोज है, जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड दे आर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बीइंग। तो ये ऊपर है, ये जो कोलॉन है, और ये जो पार्ट है 1 2 3 और यहां से 4, यहां से यहां तक, तो ये कोलॉन है दोस्तों, और इसका जो नाम है, दिस इज एन असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन क्यों कहा गया असेंडिंग? क्योंकि इट इज रन ऑन द, इट इज रनिंग ऑन द अपर साइड, और ये राइट साइड है दोस्तों, लोकेटेड ऑन द राइट साइड। असेंडिंग कोलॉन इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड। नाउ ये ट्रांसवर्स कोलॉन होता है, इसका नाम है ट्रांसवर्स कोलॉन, एज इट इज रनिंग ट्रांसवर्सली, इसका नाम है दोस्तों दैट इज ट्रांसवर्स कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन, इसका नाम है ट्रांसवर्स कोलॉन। नाउ ये जो है, ये लेफ्ट साइड है, और ये लेफ्ट साइड पे कोलॉन पार्ट होता है कोलॉन का, जिसका नाम है दोस्तों डिसेंडिंग कोलॉन, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, मींस डिसेंडिंग, इसका नाम है डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन, कोलॉन के ही 4 पार्ट है, डिसेंडिंग कोलॉन। और ये ऐसा यस शेप्ड जो पार्ट बना है, मैं थोड़ा सा अलग इसमें निकालता हूं, लाइक दिस। ये जो ऐसा यस शेप्ड पार्ट बना है दोस्तों, लाइक दिस, ये है सिग्मोइड कोलॉन। सिग्मोइड मींस यस शेप्ड, सिग्मोइड कोलॉन, ये पार्ट। और यहाँ पे जो ये पार्ट है दोस्तों, दिस वन, ये है, मान लो दिस इज एन रेक्टम, ये वाला जो पार्ट है, वेयर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड ऑकर, इसे कहा गया है दोस्तों रेक्टम। वेयर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड ऑकर, इसे कहा गया है रेक्टम। रेक्टम, ये इतने पार्ट है, ये इतने पार्ट है, दैट इज दोस्तों, ये है सीकम, फिर ये है कोलॉन और रेक्टम, और ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहा जाता है दोस्तों एनस। ये जो ओपनिंग है, इसे कहा जाता है एनस। इज दैट ओके? इज दैट ओके? क्लियर है? जस्ट वेट, जस्ट वेट। ओके, समझता है? समझता है मुलानो? ओके, यस और नो बोलो, यस और नो, ठीक है। सो इसके बारे में बात करेंगे, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। और नाउ इस सीकम के यहाँ पे दोस्तों एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है। कैसा? नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट एट द सीकम, और इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्म जैसा दिखता है, वर्मीफॉर्म मींस वर्म लाइक, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नाम है उसका। इसका अगर इन्फ्लामेशन होता है तो दोस्तों उसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ओके, और ये कैसा है? हर एक स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? इसको बोलती है नैरो, इसको बोलते हैं दोस्तों, ऐसे देखो, ये ऐसा है, ये हो गया, वाओ, ये हो गया नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। ट्यूबुलर मींस अंदर से ल्यूमन है, उसको सॉलिड नहीं है। नैरो, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, उसे कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अराइजेस फ्रॉम सीकम। ये क्लियर है? और ये दोस्तों रेक्टम, रेक्टम। नाउ प्लीज पे अटेंशन, अभी ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो सीकम है दोस्तों, ये क्या है? ये ब्लाइंड सैक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, याद रखो। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है दोस्तों? इट इज एन वेस्टिजियल ऑर्गन। कैसा है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है विथ रिस्पेक्ट टू डाइजेशन। वेस्टिजियल मींस नॉन फंक्शनल ऑर्गन होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन है विथ रिस्पेक्ट टू डाइजेशन, विथ रिस्पेक्ट टू डाइजेशन। हाँ, एक लिम्फॉइड काम करता है, इसमें लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। सीकम क्या है? हमेशा याद रखो, सीकम क्या है दोस्तों? ये एक ब्लाइंड सैक है। ये क्वेश्चन आएगा, ब्लाइंड सैक, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्लाइंड सैक। रेक्टम क्या है? ये टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर रेक्टम में होता है। रेक्टम में क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर रेक्टम में होता है। मैं बाद में बात करूंगा। ये कभी मत भूलो कि ये राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है। सपोज अगर मैं हूं मेरे एब्डोमिनल कैविटी में, यहाँ पे दोस्तों असेंडिंग कोलॉन, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलॉन, यहाँ पे डिसेंडिंग कोलॉन, और फिर यहाँ पे
सिग्मोइड कॉलम और नीचे रेक्टम और फिर एनस। नाउ प्लीज पे अटेंशन। होता क्या है, एक डिसीज है अल्कोहल लिवर डिसीजेस। एमबीबीएस फाइनल ईयर में इसकी केस आती है दोस्तों। उससे अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहल लेने से एक डिसीज होता है जिसका नाम है लिवर सिरोसिस। लीवर काम नहीं करता है, लीवर बिकम स्टोनी हार्ड। ओके, स्टोनी हार्ड बनता है लीवर और काम नहीं करता, इसलिए ना एब्डोमेन में, एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं उसे, बहुत ही एक एसाइटिक फ्लूइड जमा होता है, पानी जमा होता है। और उसकी वजह से एब्डोमेन में 2-2 लीटर पानी जमा होने से एब्डोमेन क्या होता है दोस्तों, बल्जिंग होता है। और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट तो है, पर कभी कभी इतना ज्यादा फ्लूइड भर जाता है कि ये जो डायफ्राम है जो नीचे जाता है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, डायफ्राम जो मसल है दोस्तों which divide the abdominal and which is act as a partition between abdominal and thoracic cavity। और जब भी हम इंस्पायर करते हैं तो ये डायफ्राम नीचे जाता है, पर वो लिक्विड की वजह से, वो फ्लूइड की वजह से डायफ्राम नीचे नहीं जा सकता और पेशेंट फील ब्रीथलेस। पेशेंट को सिम्टम चालू हो जाता है ब्रीथलेसनेस। और अगर वार्ड में हो आप तो दोस्तों उसको क्या करना है, टैपिंग करना पड़ता है। टैपिंग मींस बड़ी सी सिरिंज और बड़ी नीडल होती है और उस नीडल को एब्डोमेन में डाल के क्या करते हैं हम, वो जो फ्लूइड है वो निकालते हैं। इसे कहते हैं एब्डोमिनल टैपिंग और पेरिटोनियल टैपिंग। तो ये आपको इंटर्नशिप में करना पड़ता है। जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो ऐसे पेशेंट बहुत सारे इंडिया में क्रॉनिक अल्कोहलिक लोग हैं और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं और एक बड़ा सा एब्डोमिनल स्वेलिंग होता है और लेके आते हैं और फिर उनको ब्रेथलेस का प्रॉब्लम होता है। इमीडिएट क्या करना है, तो उसका फ्लूइड निकालना होता है। तो जब हम सीरिंज, याद रखो, जब हम निडल डालेंगे तो क्वेश्चन हमारे सर ने पूछा था मुझे फाइनल ईयर एमबीबीएस में कि सर अगर ऐसा करना है तो आप टैपिंग किस साइड से करोगे, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। ओके, मैंने कभी भी पढ़ा नहीं था कि टैपिंग किस साइड से करोगे, राइट और लेफ्ट साइड से। और एमबीबीएस ने मुझे ये सिखाया कि फेंकना नहीं है कुछ भी, अगर पता है तो बोल दो और पता नहीं तो चुप रहो या फिर सोचो क्या हो सकता है। तो हर कोई बोल सकता है कि सर राइट साइड से करना चाहिए क्योंकि राइट साइड इजी होता है हर एक किसी को। पर मैंने थोड़ा सा सोचा और फिर देखा कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या है दोस्तों। डाइजेशन कहां पे होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। फिर वो सीकम में आता है और फिर यहाँ से फीकल मैटर बनना शुरू होता है। असेंडिंग कोलन से वाटर एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसवर्स कोलन से वाटर एब्जॉर्ब होता है, डिसेंडिंग कोलन पे भी यहाँ पे एक्चुअली फीकल मैटर बना होता है, फीकल मैटर बना होता है। तो मैंने सोचा कि राइट लेफ्ट साइड से कर सकते होंगे, पर मैंने आंसर नहीं किया। सर बोला, मैं बोला सर मुझे पता नहीं, फिर भी बोले, पर मेरा आंसर है कि लेफ्ट साइड से करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट साइड से नहीं करेंगे, राइट साइड से करेंगे। तो लेफ्ट साइड से करेंगे, करने का अगर हमने यहां से टैपिंग कर दिया, यहां से सपोज नीडल लगा लिया, तो देर में भी चांसेस कि ये डिसेंडिंग कोलन पियर्स हो सकता है, इसमें भी वो सुई जा सकती है। अगर इसमें वो सुई गई दोस्तों, ओके, ये टैपिंग की जो नीडल है, अगर वो नीडल इसमें चली गई तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। क्यों बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है? क्योंकि ये जो फीकल मैटर ये डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी में और उससे इंफेक्शन होता है। उसे कहते हैं पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। एक मेम्ब्रेन होती है और पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कभी भी टैपिंग जो करना है तो राइट साइड से करेंगे कि राइट साइड से वो फूड है, फीकल मैटर नहीं है। अगर भी पंक्चर भी होता है असेंडिंग कोलन तो इतना वो इन्फेक्शियस नहीं है, पर यहाँ पे फीकल मैटर अगर एब्डोमिनल कैविटी में दोस्तों इधर उधर स्प्रेड हो गया तो देयर में भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। तो ये टैपिंग जो होता है ये आपका पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट एमसीक्यू, जस्ट नॉलेज है। ये मुझे अभी आपको बताने की मुझे लगा कि बताना चाहिए। तो टैपिंग विल बी डन ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड यहाँ पे फीकल मैटर है। अभी ये क्लियर है, आगे जाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होता है। ये अपेंडिक्स जो है दोस्तों कभी कभी इसका इन्फ्लामेशन होता है तो उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस और फिर हम इसे निकाल लेते हैं। ये ऑलरेडी वेस्टिजियल ऑर्गन है और वो जो सैक है उसे क्लोज कर देते हैं। ओके, चलो अभी ये डायग्राम है तो डायग्राम के बेसिस के ऊपर हम आगे थ्योरेटिकल बात करेंगे।
लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। और जो मैंने वो ऐसा ऐसे ऐसे निकाले थे उसे होस्टोरिया बोलते हैं, दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये भी क्वेश्चन आएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा गया है, उसका लेंथ कम है, याद रखो इसका लेंथ कम है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसका ल्यूमन ज्यादा है, बड़ा है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। नाउ स्लाइड नंबर 2, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। इट कंसिस्ट ऑफ दोस्तों, it consists of that is three parts, और वो है दोस्तों that is cecum, colon and rectum। ये उसके 3 पार्ट है, cecum, colon and rectum। नाउ बात करते हैं दोस्तों cecum की, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं cecum। ये क्या है याद रखो, इट इज एन ब्लाइंड सैक, ओके, it is a blind sac and which contain दोस्तों some symbiotically associated bacteria, okay। it is a blind sac म्हणजे बैग, blind का मतलब है एक ही साइड से ओपन है। it is a blind sac, okay, which contain दोस्तों some symbiotically associated bacteria, which contain symbiotically associated bacteria like दोस्तों E. coli नाम की बैक्टीरिया, इशर्शिया कोलाई। नाउ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये E. coli क्या करते हैं, दे हेल्प इन डाइजेशन एंड सो हमें वो डाइजेशन में मदद करते हैं और हम उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों ये क्या होता है, ये जो E. coli है, E. coli bacteria help in digestion, they also help in production of some vitamins, help in digestion and in turn okay, बदले में क्या लेते हैं, in turn दोस्तों get nourished or in turn that human body provide nourishment to them, in turn human body provide, उन्हें 2 चीजें प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड दोस्तों, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड शेल्टर टू देम, न्यूट्रिशन एंड शेल्टर टू देम, याद रखो। ये दोस्तों दैट इज E. coli बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन एंड इन टर्न ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड शेल्टर टू देम। तो ये जो E. coli दोस्तों, E. coli आल्सो प्ले अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के। यहाँ पे विटामिन के भी बनाते हैं दोस्तों, ओके, यहाँ पे E. coli plays role in synthesis of एक विटामिन होता है, विटामिन के। तो कौन सा विटामिन हमारे ये सिक्कम में बनता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर है विटामिन के। ये आगे चल के है, पर याद रखो। सो दिस इज एन सिक्कम। नाउ ये भी याद रखना है दोस्तों यहाँ पे, दैट इज सीकम में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म म्हणजे वर्म लाइक, आळी सारखं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एक स्ट्रक्चर होता है, इसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कंफ्यूजर है थोड़ा सा। तो ये क्या है दोस्तों, इट इज अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन अराइजेस फ्रॉम द सीकम and it is a vestigial organ in human body। इसका कोई फंक्शन नहीं है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इट इज देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, इट इज नैरो, वो ब्रॉड बोलेंगे, अपना नैरो के ऊपर ही रखना है। इट इज नैरो फिंगर लाइक, वो कुछ दूसरा टाइप का बोलेंगे, फिंगर लाइक, इट इज नैरो फिंगर लाइक, यहां से लिखा, इट इज नैरो finger like, it is narrow finger like tubular projection है। tubular means अंदर से ट्यूब है, उसको सॉलिड नहीं है। tubular projection arises from cecum, कहां से है, arises from cecum।
सिकम से आता है, अराइजेस फ्रॉम सिकम, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके लिए एक दोस्तों एक बात है, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, मींस नॉन फंक्शनल ऑर्गन है, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। हमने अभी तक दो वेस्टिजियल ऑर्गन देखे दोस्तों, एक है विजडम टीथ दैट इज अ थर्ड मोलर, और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। और वेस्टिजियल का मतलब होता है नॉन फंक्शनल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन with respect to WRT, means with respect to digestion, means digestion में इसका रोल जीरो है। बट दोस्तों it is a secondary lymphoid organ, means it has a lymphatic tissue and play a role in immunity। ये टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डाइजेशन में, ये ह्यूमन हेल्थ में और डाइजेशन में एक पार्ट है दोस्तों। इट इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये क्या होता है मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर याद रखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो ही है, एक है बोन मैरो, दूसरा है थाइमस। एमसीक्यू बिट्टी बिट्टी, बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी मींस वहां पे लिम्फोसाइट बनते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, उन्हें कहते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और यहाँ पे सिर्फ लिम्फोसाइट होते हैं, रहते हैं, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो इट इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है दोस्तों कौन, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और लिम्फोसाइट आपको पता है क्या करते हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी, वो हमारे आर्मी है हमारे बॉडी की। ओके जैसे इंडियन आर्मी है वैसे लिम्फोसाइट आर द आर्मी ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो दोस्तों दे आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इट इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड प्लेज रोल इन इम्यूनिटी, प्लेज रोल इन इम्यूनिटी। कौन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अभी सबको क्या पता है दोस्तों, सबको पता है कि ताजमहल किसने बांधा है, शाहजहां ने बांधा है, सबको पता है, पूरी इंडिया को पता है। पर वहां पे अगर ताजमहल के पहले भी एक फोर्ट है जिसका नाम है दोस्तों आगरा फोर्ट। शायद हम गए थे एमबीबीएस सेकंड ईयर में दिल्ली, तो आगरा भी गए थे। तो आगरा फोर्ट किसने बांधा, आगरा फोर्ट किसने बिल्ड किया है, तो उसका भी आंसर दोस्तों शाहजहां ही है। और उसका अनफॉर्चुनेटली उसी किले में, उसी फोर्ट में उसको कैद करके रखा था, छोड़ो वो बात अलग है। पर जैसे कि सबको पता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, कुछ काम का नहीं है इन डाइजेशन, बट वो काम का है इन इम्यूनिटी, वो काम का है इन इम्यूनिटी बिकॉज दोस्तों उसमें ना लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और जब इसका इन्फ्लामेशन होता है दोस्तों, कभी कभी यहाँ पे इन्फेक्शन होता है और इसका इन्फ्लामेशन होता है, उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस। और मैंने इतने बड़े बड़े, जब सपोज मान लो ये क्या है, एक फिंगर लाइक, और फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है इतना, और मैंने अपेंडिक्स सपोज मान लो जो बनाना होता है ना, उतने बड़े बड़े अपेंडिक्स देखे हैं। जब ऑपरेशन सर्जरी की पोस्टिंग होती है दोस्तों, और सर्जरी की पोस्टिंग सेकंड ईयर से पोस्टिंग शुरू होती है, हर एक सब्जेक्ट की सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है, गायनी है, मेडिकल मेडिसिन है, तो इनके पोस्टिंग शुरू हो जाते हैं। आपको वार्ड में जाके पेशेंट देखने होते हैं, ओटी में जाके, ऑपरेशन थिएटर में जाके देखना होता है, ये बहुत बढ़िया है मेडिकल साइंस। आई रियली मिस दोज डेज एक्चुअली। तो वो ओटी में जाना सुबह सुबह, ठीक है 8 बजे ओटी चालू होती है, और फिर ये आज क्या केस है, तो अपेंडिक्स है, तो वो डॉक्टर फिर ऑपरेशन करते करते बताते बच्चों देखो ये ऐसे 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 कट कर रहे हैं, ठीक है ऐसा ले रहे हैं, ऐसा इंसिजन ले रहे हैं, देखो इतना बड़ा है, ठीक है ये रेडिश है, ब्लैकिश है। तो मैंने बनाना इतने बड़े बड़े अपेंडिक्स देखे हैं, तो उसको रिमूव करते। अभी तो बहुत अच्छी टेक्निक आई लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी, दुर्बीणद्वारे ऑपरेशन करतात, जास्त ऍब्डोमेन कट पण करायची गरज नाही। सो इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड दोस्तों अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस याद रखो, ये यहां पे लिखता हूं मैं अपेंडिसाइटिस, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला पर आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी इटिस आएगा, जब कभी भी इटिस आता है, इसका मतलब है इन्फ्लामेशन, मींस रेडनेस। इन्फ्लामेशन का मतलब लोगों को बताता हूं, इन्फ्लामेशन यहां पे किसी ने हिट कर दिया, हिट कर दिया तो 4 चीजें हो जाएंगी, ये रेड बन जाएगा ये एरिया, ये स्वेलिंग हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इसमें पेन होने लगेगा। ओके रेडनेस, स्वेलिंग, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और पेन हो जाएगा। ये जो 4 कार्डिनल साइन है इन्फ्लामेशन के, जब भी इटिस होता है तो उसे कहते हैं दोस्तों इन्फ्लामेशन, और जो ऑर्गन है उसके नाम के पीछे आता है, तो इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ
appendix. It is an inflammation of appendix. Appendicitis. Surgery, appendix. Surgery is the best treatment. So this is number 2. Is that clear? और ये यंग एज में कॉमन है, आपकी उम्र में ये सबसे ज्यादा है अपेंडिसाइटिस, याद रखो। ये क्लियर है दोस्तों? इज दैट क्लियर? नो, क्या बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है श्रेया ने। ओके, इसमें लिम्फोसाइट आते हैं। श्रेया ने क्वेश्चन पूछा है, सर ये अगर अपेंडिक्स रिमूव कर दिया तो इम्यूनिटी के ऊपर कोई परिणाम होगा क्या? नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और एक नहीं तो ऐसे कई सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है दोस्तों। स्प्लीन भी एक लिम्फ नोड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। बहुत सारे हमारे बॉडी में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो इससे कुछ फर्क नहीं होता है इतना। जो मेन है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, अगर वो ये हो गए, उनको प्रॉब्लम हो गया तो जरूर इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। थाइमस ग्लैंड है जो दोस्तों, थाइमस नाम की एक ग्लैंड है, वो ओल्ड एज में डिसअपियर होती है, इसीलिए उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ये कोविड में ओल्ड एज वाले लोग क्यों जा रहे हैं, उनकी क्यों डेथ हो रही है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है। क्यों? क्योंकि उनमें ना थाइमस ग्लैंड डिसअपियर हुई है। दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। तो नेचुरली डिसअपियर हो जाती है, इसलिए दे बिकम ससेप्टेबल टू सच इन्फेक्शन। ये याद रखो। ये मैंने बोला है वो याद रखो कि ओल्ड एज में थाइमस ग्लैंड आफ्टर एज ऑफ 55 टू बी स्पेसिफिक, थाइमस ग्लैंड टोटली डिसअपियर हो जाती है। और थाइमस ग्लैंड एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, उसका इम्यूनिटी में बहुत सारा रोल होता है। वो थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, और वो अलग अलग टाइप की जो इम्यूनिटी है उसे वो बूस्ट करता रहता है। और वो थाइमस ग्लैंड ओल्ड एज पेशेंट में नहीं होती है, इसलिए उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उसीलिए दे आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन चले जाने से इतना कुछ फायदा, इतना कुछ नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे बॉडी में। ओके, लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, पेयर पैचेस होते हैं इलियम में, वो भी याद रखो दोस्तों। नाउ ये हो गया सीकम के बारे में। बात करते दोस्तों कोलॉन की। ये जो कोलॉन है, इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ, इट इज दोस्तों लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट है कौन? कोलॉन। कोलॉन, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ दोस्तों, कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, 4 पार्ट, दैट इज नंबर 1 असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन ये कहां पे लोकेटेड है? ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड पे है, इस साइड पे असेंडिंग कोलॉन। नंबर 2 है दोस्तों ट्रांसवर्स कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन ये है दोस्तों ऑन ऑन हॉरिजॉन्टल
आवाज येतोय माझा मुलांना? एक मिनिट, हा, जस्ट वेट. आवाज येतो का माझा सांगा? आवाज येतोय मुलांना? हा, तर कॅमेरा बंद झालेला आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. तर तुम्ही मला ना डाऊट्स विचारू शकताय, कारण की आता ते सुरू होणं थोडंसं वेळ लागेल. यू कॅन आस्क मी अ डाऊट. मी तुम्हाला सर्वांना हे करतो. अनम्यूट केलेलं तुम्ही विचारू शकता. व्हॉट इज द रीजन ऑफ अपेंडिसाइटिस? इन्फेक्शन. इन्फेक्शन इज द रीजन ऑफ अपेंडिसाइटिस. बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड. व्हाई? ग्रेवयार्ड म्हणजे स्मशान भूमि फॉर आरबीसी. वहां पे आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है दोस्तों. आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज. जब वो सेनाइल हो जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं, तो वो स्प्लीन में जाके उनका डिस्ट्रक्शन होता है. इसीलिए स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. वाया मीन्स थ्रू, उसके थ्रू. ठीक है, हाँ बोला. आवाज नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा बोलो. एक जन विचारा. 756. ल्यूमन. ल्यूमन का मतलब होता है ट्यूब. ल्यूमन का मतलब होता है ट्यूब. 600 MB संकेत वापर. ल्यूमन का मतलब है ट्यूब. ओके. कार्डियक स्पिंक्चर ओपन हो गया. ओमेटिंग में क्या होता है दोस्तों, इतने ज्यादा वेव्स बनते हैं रिवर्स, तो कार्डियक स्पिंक्चर ऑटोमेटिकली ओपन होता है. और स्टमक का जो कंटेंट है ना, स्टमक का कंटेंट, वो स्टमक का कंटेंट ईसोफेगस से माउथ में आके वो बाहर फेंका जाता है. तो ये ओमेटिंग. ओमेटिंग में द कार्डियक स्पिंक्चर विल ओपन. और स्टमक में इतने सारे वेव्स बनते हैं, उसकी वजह से वो कंटेंट बाहर आ जाता है. ओमेटिंग में डिओडेनम का कंटेंट बाहर नहीं आता है, सिर्फ स्टमक का कंटेंट ही बाहर आता है. ओके. व्हाट इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो है दोस्तों, बीटी याद रखो. वन है बोन मैरो और दूसरा है दैट इज थाइमस ग्लैंड. तो यहाँ पे ना लिम्फोसाइट सिंथेसिस होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट. इसलिए दीज आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. और बाकी के इसमें जब सिर्फ वो रहते हैं, उसलिए उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. सर जर इपिग्लॉटिस डॅमेज झालं तर ट्रकियामध्ये फूड जाईल का? हो. epiglottis if not working properly, the food will directly enter into the trachea, or it's an emergency condition, it's a medical emergency, और पेशेंट को केमिकल निमोनायटिस हो जाएगा. ओके. सर तुम्ही दिलेल्या डायरीमध्ये नोट्स लिहायचे आहेत का? नाही, त्या डायरीमध्ये फक्त तुमचे प्लॅनिंग लिहायचं आहे. सर लिम्फोसाइट आर ऑफ डब्ल्यूबीसी. हाँ, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट, उसमें एक टाइप है लिम्फोसाइट. ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी, उसमें एक टाइप होता है लिम्फोसाइट. डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप के सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. तो लिम्फोसाइट में फिर 2 है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. सर व्हाट इज द वर्क ऑफ जेजुनम? फंक्शन ऑफ जेजुनम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. सर व्हाट एग्जैक्टली हैपन ड्यूरिंग ओमिटिंग? ओमिटिंग में क्या होता है कि ओमिटिंग का सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. ब्रेन में एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा,
उस जब स्टिमुलेट होता है तो स्टमक में ऐसे वेव्स बनते हैं, सपोज स्टमक नॉर्मली ऐसा काम कर रहा है तो उल्टे वेव्स बनते हैं दोस्तों, और उसकी वजह से क्या होता है, फूड नीचे नहीं जाता डिओडेनम में, वो ऊपर आने लगता है, और उसकी उस फोर्स की वजह से वो कार्डियक स्पिंक्चर जो है वो ओपन होने लगता है, और कार्डियक स्पिंक्चर जब ओपन होता है तो स्टमक का कंटेंट फिर इसोफेगस से माउथ और माउथ से बाहर आ जाता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में वोमिटिंग का सेंटर होता है, वो स्टिमुलेट होने के कारण ये सब होता है। ओके सर, आपण व्हाट आर द रीजन ऑफ डैमेज ऑफ पाइलोरिक पार्ट? पाइलोरिक पार्ट डैमेज नहीं होता है, कभी कभी वो स्टिनोसिस हो सकता है। ओके, व्हाट इज oogamous? oogamous means fertilization occur inside the oogoneum. oogoneum नाम का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ना oogoneum, जिसमें फीमेल गैमेट होता है, अगर उस oogoneum नाम के स्ट्रक्चर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं oogamous टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, अपेंडिक्स इज नॉट, व्हाट इज द जॉइनिंग पार्ट ऑफ इलियम एंड सिकम? उसे कहते हैं इलियोसिकल वॉल। वॉल जो होता है ना, ओके, पाइपलाइन में एक वॉल होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रहे उस वाटर का, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रहे फूड का, इसलिए वहां पे एक वॉल है, उस वॉल का नाम है दोस्तों, उस वॉल का नाम है इलियोसिकल वॉल। व्हाट इज मीन बाय एसिडिटी? एसिडिटी मींस स्टमक का जो एसिडिक कंटेंट है वो इसोफेगस में आता है, और उसकी वजह से कुछ बर्निंग या फिर वो जो रिगर्जिट होता है तो कुछ बर्निंग सेंसेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिडिटी। सर वर्मिफॉर्म, सर रीजन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन। ओके, तुम्ही मला कॉल कधी करू शकताय तुम्ही 11:30 नंतर करा। सर डिसीज इन वोमिटिंग ऑकर फ्रीक्वेंटली, सो डज दैट मीन्स कार्डियक स्पिंक्चर गेट लूज? हाँ, वो लूज ही हो जाता है, मैं बोला ना कि वो वहां पे नहीं है, वो कायम हमेशा लूज नहीं रहेगा, वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा में सेंटर होता है वोमिटिंग का, और वहां से वो सब ऑपरेट किया जाता है। अपेंडिक्स इज नॉट वेस्टिजियल इन सम ऑर्गन, मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, हमें ये वेस्टिजियल है, अदर ऑर्गन में वो डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अदर ऑर्गन में वो डाइजेशन में हेल्प करता है। इलियम का काम है एब्जॉर्प्शन, जेजुनम और इलियम का काम है एब्जॉर्प्शन। हमने अभी फिजियोलॉजी के बारे में कुछ भी बात नहीं की है, हम फंक्शन के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे, और जेजुनम एंड इलियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड डिओडेनम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। ओके, व्हाट इज म्यूकरमाइकोसिस? एक फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, उसमें वो होता है। ओके सर, फूड ट्रैवल थ्रू लैरिंग्स? नो नो नो। Is there any possibility that after year vestigial organs, stomach in which part gastric juice are present? Where does the action of protein and lipid takes place? ऐसा नहीं है, स्टमक में एक सेल होते हैं, आगे जाके आएगा, स्टमक फैमिली की बात करूंगा, पैराइटल सेल, और दिस पैराइटल सेल सीक्रेट एसिड HCl, और वो फिर स्टमक के ल्यूमन में आ जाता है, और उस कुछ ऐसे भी सेल है जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, दोस्तों मान लो कि जाइमोजिन सेल है या फिर चीफ सेल है, वो पेप्सिन नाम का एंजाइम रिलीज करते हैं, उसकी वजह से पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो HCl is secreted by parietal cell of stomach. What actually happen in appendicitis when person facing stomach pain? ज्यादा वहां इन्फ्लामेशन होता है। एक्यूट एब्डोमिनल पेन के अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं, उसमें से एक कॉज है अपेंडिसाइटिस। सर अल्टीमेट, एक मिनट, टेस्ट एंड डिस्कशन कधी घेणार आहे? तुम्ही कोणत्या मेडिकल कॉलेजला होता? गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापूर। वायरॉन क्या है? वायरॉन इनर्ट वायरस इन एटमॉस्फेयर, उसे वायरॉन बोलते हैं। इनर्ट वायरस इन एटमॉस्फेयर उसे बोलते हैं वायरॉन। ट्रांसफर सेक्शन मींस, ट्रांसफर्स मींस वो हॉरिजॉन्टली लोकेटेड जो कोलन है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ओके, कॉकिस इज आल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन। यस यस, इट इज आल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन। Cecum is blind sac because from one side appendicite is present, another side is ascending colon. अरे एक ओपन साइड कुठे आहे? अपेंडिक्स ओपन कुठे आहे? अपेंडिक्स क्लोज आहे। DNRP means daily NCERT reading program. The stomach in which, sir, in stomach in which part gastric juice are present? मैंने बोला ना, gastric juice are secreted by gastric mucosa होती है, उसमें gastric gland होते हैं, वो gastric juice secrete करते हैं, और वो सभी स्टमक में होता है, सभी पार्ट में। ओके, अपेंडिसाइट वेस्टिजियल ऑर्गन है तो वो डिजेनरेट क्यों नहीं होता है? धीरे धीरे जनरेट होगा, ये इवोल्यूशन का पार्ट है दोस्तों। उसका लिम्फॉइड होना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें लिम्फ टिश्यू होना, तो इसीलिए वो अभी तक रहा होगा। फंक्शन ऑफ सिग्मॉइड कोलन,
कुछ नहीं, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ फीकल मैटर होता है। ओके, यस, अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यस, नहीं, चेविंग गम स्टक नहीं होता है स्टमक में, गलत बात है। थर्ड मोलन इज कॉल्ड एज अ नॉन वेस्टिजियल ऑर्गन, इट कैन हेल्प इन चेविंग। नो, इट डज नॉट हेल्प इन चेविंग, इसका नॉन फंक्शनल है वो। सर ज्यांना डाऊट, सर अपेंडिक्स लोअर ऑर्गॅनिझम मध्ये काम करता का? यस, इट इज वर्किंग इन लोअर ऑर्गॅनिझम, नहीं लोअर एनिमल भी नहीं, अदर एनिमल में वर्किंग है। ओके, अब हाउ अपेंडिक्स इज हार्मफुल? हार्मफुल नहीं है, उसका इन्फ्लामेशन हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ज्यांना डाउट नाही ते जाऊ शकता है। ऐसा कुछ नहीं, 3 पार्ट क्यों है, ये बनाया है ऐसा स्ट्रक्चर। ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ गट, बेटा आयुष तुझा प्रश्न मला कळाला नाही। ट्रान्सफर सेक्शन म्हणजे तुला सांगतो, मी दिसतोय का तुम्हाला सर्वांना? मी तुम्हाला सर्वांना दिसतोय का? हा, ट्रान्सफर सेक्शन म्हणजे हे कोलाने याचा असा कट घेतला, दॅट इज ट्रान्सफर सेक्शन। असा जर कट घेतला कुठल्याही सरळ ट्यूबचा, तर त्याला म्हणायचं ट्रान्सफर सेक्शन। ठीक आहे, त्याला म्हणायचं ट्रान्सफर सेक्शन। शुड बी सिकम कोलन अपेंडिक्स एंड रेक्टम। नहीं नहीं नहीं, अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ सीकम। एक्चुअली उसे अलग से कहा नहीं जाता है कि ये पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सीकम। इन्फ्लामेशन मीन्स दोस्तों, अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फिर हमें कोई चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद क्या होता है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, वहां पेन शुरू होने लगता है, वो एरिया रेड कलर का बनता है और वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर कंपेयर टू नॉर्मल स्किन बढ़ जाता है। तो ये 4 साइन होते हैं। ओके, 4 साइन है दोस्तों, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस एंड इंक्रीज टेम्परेचर। ये 4 साइन जब हो रहे उसे कहा जाता है इन्फ्लामेशन। पूर्वीच्या काळात आपल्या पूर्वजांच्या शरीरात टेलबोनचं काय फंक्शन होतं? बॅलन्स। अपेंडिक्स वेस्टिजियल आहे, मग त्याचा इन्फ्लामेशन ने काय फरक पडेल? वेस्टिजियल जरी असलं तरी इन्फेक्शन जर झालं तर पेन होऊन जाईल ना, खूप जास्त पेन होतं। काम जरी करत नसलं तरी त्यामध्ये त्याला ब्लड सप्लाय प्रॉपर आहे, सगळं आहे ना बेटा त्याला। ओके, लिव्हिंग टिश्यू, लिव्हिंग सेल आहेत त्याच्यामध्ये। तर इन्फ्लामेशन झालं तर पेन होईल खूप जास्त, आणि एकदम ॲक्यूट ॲब्डोमिनल पेन होतो, पेशंट असा खाली लोळायला लागतो, एवढा जास्त पेन आहे। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ मैं विधि बताता हूं, पर वो बहुत कम होगी, 2 to 3 मीटर। विजडम टीथच्या आधी काय यूज होता? विजडम टीथ का यूज यही है, चेविंग के लिए, पर हम में वो नॉन फंक्शनल है। वो कार्डियक पार्ट के वहां पे है ना। Why it is called as a cardiac part? Because it is located near to the cardiac part of stomach. Gastroesophageal sphincter is called the cardiac sphincter because it is located at the cardiac part of stomach. ईयरबोन वेस्टिजियल नहीं, पर ईयर पिन्ना वेस्टिजियल है बेटा, ये पिन्ना वेस्टिजियल है, ये वाला, दिस इज वेस्टिजियल। नहीं, गलत। चेविंग गम ये डाइजेस्ट होता है पूरा, ये कहाँ पे, ये मीथ है दोस्तों कि ये स्टमक में या इंटेस्टाइन में जाके अटैच होता है कहीं तभी, नहीं, वो पूरा डाइजेस्ट होता है। अगर ऐसा होता तो वो गवर्नमेंट उसको अप्रूवल ही नहीं देती, पूरा डाइजेस्ट होता है। अपेंडिक्स का यूज कुछ नहीं, वो जस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, वहां पे लिम्फोसाइट लोकेटेड होते हैं। बॉडी हेयर लोकेटेड है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। यस यस, बॉडी हेयर आर आल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बीइंग। नेझोफेरिंग कॉमन पैसेज आहेत का? कारण त्यातून फक्त ईयर जाते। नहीं सचिन, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेजोफेरिंग से सिर्फ ईयर जाती है। ओरोफेरिंग्स एक्चुअली देखा जाए तो टू बी स्पेसिफिक इज अ कॉमन फॉर ओरो एंड लैरिंगो, कॉमन फॉर फूड एंड ईयर। सर फंक्शन ऑफ सिग्मोइड कोलन, यहाँ पे अक्षय फीकल मैटर सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन का ऑफ फीकल मैटर बनना शुरू हो जाता है, फीकल मैटर बनना शुरू हो जाता है सिग्मोइड कोलन में। उनमें उनका कोई इतना रोल नहीं है,
ओके, ये जो प्रीमोलर और दो फर्स्ट और सेकंड मोलर है उन्हीं से हमारा काम चल जाता है, इसीलिए अभी वो नॉन फंक्शनल बन गया है। E. coli are harmful in some cases for our body in सिकम। क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा किसने, अजय ने, वाह। तो बेटा E. coli के दो टाइप है, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मींस these are the E. coli which causes disease, and non pathogenic means these are the E. coli which causes दोस्तों that does not causes disease। तो याद रखो, तो दो टाइप के होते हैं, और ये जो है सिकम में वो नॉन पैथोजेनिक है। Why? But body here help to maintain temperature of body। गलत, किसने कहा आपको, विधि गलत। Temperature of body is maintained by sweating, not body here। When human donate one kidney, then how to work in a second kidney? Second kidney काम कर सकता है, लाइफ टाइम वो काम कर सकता है। और ऐसा नहीं होता है दोस्तों, किडनी ऐसा, किडनी कोई कारपोरेटर नहीं है, या फिर ऐसा कोई कार्बोरेटर नहीं है, या कोई प्लग वगैरह नहीं है, एक आदमी से निकाल लिया और दूसरे आदमी फिट कर दिया। कुछ हम टिश्यू निकालते हैं, एक स्लाइस निकालते हैं, किडनी स्लाइस निकालते हैं, और वो स्लाइस, उसमें कुछ टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, वो जाके दूसरे इसमें फिट करते हैं, या फिर वहां पे जाके ग्राफ्ट करते हैं, फिट नहीं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं उसको। इसका मतलब उसकी किडनी पूरी नॉन फंक्शनल होती है ऐसा मतलब नहीं है, वो फिर से रीजनरेट होती है दोस्तों। व्हाट इज फीकल मैटर? फीकल मैटर मींस अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब्ड फूड जो हम एनस से बाहर फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड फीकल मैटर। सर डज अपेंडिक्स प्रोड्यूस सम गुड बैक्टीरिया? नो। सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड बैक्टीरिया, इसका मतलब होता है बेटा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन मींस एक ऐसा एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जहां दोनों को फायदा है, उस एसोसिएशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम मींस टुगेदर, बायोटिक मींस लाइफ, व्हेन टू लाइफ लिविंग टुगेदर, और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। बैक्टीरिया को हमारे हमसे क्या फायदा है, उन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है। हमसे बैक्टीरिया से हमें क्या फायदा है, वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। काही गोष्टी चांगल्यासाठी होतात, लक्षात ठेवा। मला वाटतं हे एक तुमच्या मनामध्ये असलेले असे शेकडो प्रश्न, याच्यासाठी पण आपण वेळ द्यायला हवा। तुम्हाला काय वाटतंय? आणि तुमचे जे डाउट्स आहेत रोज आपण ते क्लिअर करायला हवेत, है ना? तर शेवटचे जे 15 मिनिटं आहेत ना, आपण रोज असंच करूया। शेवटचे 15 मिनिटं मला तुम्ही सांगत झाला सर डाउट्स, आपण तेवढा पार्ट कंप्लीट करून डाउट करूया, त्याच्या डाउट्सवर हे करूया, ठीक आहे? त्याच्यावर फोकस करूया। and just focus on NCERT and class notes. Just focus on NCERT and class notes, and बस एवढंच सांगाल। नहीं, इडिबल वैक्सीन क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इडिबल वैक्सीन? MTG फिंगर टेस्ट नाम का एक MCQ का बुक है, आप वो खरीद लो, अच्छा बुक है। ईटिंग ऑफ हॉट फूड नहीं, कुछ डैमेज वगैरह इतना ज्यादा डैमेज नहीं होता बेटा। ओके, हाइपोथेटिकल डायग्राम का है? हाइपोथेटिकल डायग्राम मींस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो हमने बनाई डायग्राम है। जैसे मैंने इसके पहले डायग्राम बनाई थी, देखो, नेजोफैरिंग्स, उसके आगे नेजल कैविटी, ओरोफैरिंग्स, उसके आगे ओरल कैविटी, इसे कहते हैं हाइपोथेटिकल डायग्राम। हाइपोथेटिकल मींस हमने खुद से बनाई है। वैक्सीन इज गिवन बाय वेजिटेबल लाइक पोटैटो, नहीं। ओके, वर्म फॉर्म अपेंडिक्स प्ले अ रोल इन इम्यूनिटी, देन व्हाई इट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। मैंने कहा है सृष्टि बेटा, आप जरा ध्यान से सुनो, मैंने उसके आगे लिखा है सृष्टि कि वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन विथ रिस्पेक्ट टू डाइजेशन। क्या लाइन है? विथ रिस्पेक्ट टू डाइजेशन वो वेस्टिजियल है, पर उसका इम्युनिटी में रोल है, समझे? उसका जो मेन काम था वो काम नहीं करा वो, है ना? काही कामाचं नाही। लक्षात ठेवा, म्हणजे काय, एखादा मुलगा ना टेक्निक मध्ये खूप फास्ट असतो, लक्षात, एकदम जायंट असतो तो टेक्नॉलॉजी मध्ये, पण तो अभ्यास करत नाही, घरचे म्हणतात काय कामाचा नाही तो। पण असं थोडंच आहे, हा, विथ रिस्पेक्ट टू स्टडी तो काय कामाचा नाहीये, पण तो बाकीच्या टेक्निकल गोष्टीमध्ये खूप पुढे येतो। असं पण आपण होतं काय, कोणी नातेवाईक ओके काय कामाचा नाही तो, काय अभ्यास करत नाही, काय लाइक दैट। पायलोस पिंसन से भी फूड बैक आता है क्या? नहीं आता है बेटा, विधि। मुझे क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे ना बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं आता है बेटा। पाइलोरिक स्पिंक्चर ये बिटवीन स्टमक और ड्यूडेनम में है,
तो स्टमक में से फूड एक बार डिओडेनम में गया तो वो वापस नहीं आता है, वो वापस नहीं आता है। मैं एक पाइलोरिक स्फिंक्टर की स्टोरी सुनाऊंगा, एक पेशेंट मैंने देखा था, कल मुझे बोल दो या फिर अभी बोलाऊं, नहीं कल बोलता, ठीक है। साइज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इज सेम इन ईच बॉडी। हाँ, हर एक बॉडी में सेम है, हर एक बॉडी में सेम है, आप में भी वैसे है, मुझ में भी ऐसे है। एज अकॉर्डिंग टू एज वो चेंज हो जाएगी। लीवर भी रीजनरेट होता है, बोन रीजनरेट होता है दोस्तों, अलग अलग पार्ट है, किडनी भी रीजनरेट होती है, ओके। स्किन भी रीजनरेट ही होती है ना, कौन कहा आपने कि लीवर इज ओनली रीजनरेट होता है। यहाँ पे इंजुरी हो गई, मान लो यहाँ पे इंजुरी हो गई, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो हील हो जाती है, दैट इज नथिंग बट रीजनरेशन। हर कोई पार्ट बॉडी का हील होता है, हर कोई पार्ट रीजनरेट होता है दोस्तों। यहाँ पे जब इंजुरी होगी, लगेगा, तो ये बाद में हीलिंग हो जाएगी ना, हीलिंग में रीजनरेशन प्रोसेस है। एमबीबीएस सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, बड़ा एक टॉपिक है रीजनरेशन नाम का। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर, याद रखो। अमिबोसिस मध्ये इंटरव्हेस्टिबुलर लार्ज इंटेस्टाइनच्या कोणत्या पार्टला अफेक्ट करतं? पूरा पार्ट, पूरा, असं काही स्पेसिफिक नाही है। इकोलाई में 2 टाइप है अर्णव बेटा, एक है पैथोजेनिक, दूसरे है नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक इकोलाई मींस दे कॉजेस डिसीज, नॉन पैथोजेनिक इकोलाई डज नॉट कॉजेस डिसीज। जस्ट वेट नाउ। प्लीज एक्सप्लेन 4 टाइप ऑफ पैपिला इन टंग। सनवी बेटा 4 टाइप के पैपिला है। वो डायग्राम अगर आपके सामने है तो फिर देख लो। एक होता है सर्कम, और वो ओरल पार्ट पे, ओरल पार्ट मींस ये वाला पार्ट। एक होता है सर्कम वैलेट पैपिले, ओके, वो सबसे बड़े हैं, लार्जेस्ट है, उनमें टेस्ट बड होते हैं। फिर होता है दोस्तों दैट इज अ फिलीफॉर्म पैपिले, वो छोटे छोटे होते हैं, मिडल पे, सेंटर पे, उसमें वो स्मॉलेस्ट है और उसमें टेस्ट बड नहीं है। फिर है फंगीफॉर्म पैपिले, साइड पे और टिप पे होंगे, फंगीफॉर्म पैपिले, उसमें भी टेस्ट बड है। और फिर है दैट इज फोलिएट पैपिले, वो ह्यूमन बीइंग में नहीं होते। कौन से फिर कैसे रिवाइज करेंगे? सर्कम वैलेट, पहले नाम, सर्कम वैलेट वो लार्जेस्ट है, फिर फिलीफॉर्म वो स्मॉलेस्ट है और उनमें टेस्ट बड नहीं होते, फिर फंगीफॉर्म, और फिर फोलिएट, फोलिएट नहीं होते। तो 3 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। सर बिटवीन पिला एंड फेमरी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन अटैचमेंट टू होस्ट? इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। क्या बात है यार, आयुष, सोनी, बोथ आर हेल्प इन दोस्तों अटैचमेंट, बोथ। दीज आर द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, पिलाय एंड फेमरी, याद रखो। पीएफ है ना, पीएफ पता है ना आपको? अगर किसी के डैड गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर प्राइवेट भी, तो उनका पीएफ कट होता है। तो पीएफ कट जो होता है, तो इसका मतलब है वो होता है प्रोविडेंट फंड। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट में और उनके एम्प्लॉयज में एक अटैचमेंट है, ओके। गवर्नमेंट को लगता है कि अभी फायदा गवर्नमेंट का है, उनको अभी पैसे देने की जरूरत नहीं, और जो सर्विस कर रहे हैं उनको लगता है कि मेरे सेविंग हो रही है, और गवर्नमेंट फिर उसमें कुछ पैसे ऐड करके देता है। तो इसकी वजह से पीएफ की वजह से एक अटैचमेंट है गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज में। तो वैसे याद रखेंगे, पीएफ मींस दोस्तों पिला एंड फेमरी। पिला हॉलो है, क्या बात है, वो बहुत बढ़िया, और फेमरी सॉलिड होता है। फंक्शन, फंक्शन ऑफ इंसिजर और कैनाइन, कट करना। इंसिजन का मतलब है दोस्तों कट करना, फंक्शन ऑफ इंसिजर और कैनाइन, कट करना, यस। व्हाट इज रूगे? एक आज ही बताने वाला था, एक इरेगुलर फोल्ड होते हैं म्यूकोजा के स्टमक में, इरेगुलर फोल्ड है म्यूकोजा के स्टमक में, उसे कहते हैं रूगे। लाइक दिस, लाइक दिस, सॉरी, ये ऐसे फोल्ड है, इरेगुलर फोल्ड किसके? म्यूकोजा के स्टमक में, इसे कहेंगे रूगे। और फिंगर लाइक फोल्डिंग होते हैं म्यूकोजा के इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे कहते हैं विलाय। बात करूंगा दोनों में क्या फर्क है। और विलाय के ऊपर कुछ सेल होते हैं, उसे कहते हैं माइक्रोविलाय, उसे बोला जाता है माइक्रोविलाय। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्प ऑफ टीथ? पल्प ऑफ टीथ में जो
अंदर एक कैविटी है, वहां पे ना ब्लड वेसल, नर्व वेसल और लिम्फेटिक ये होते हैं, वो सब सप्लाय करते हैं न्यूट्रिशन टू द अदर पार्ट ऑफ द टीथ. सर तुम्हाला काल एनसीईआरटी आणि बाकीच्या कोणत्या बुक्स प्रिपेअर करायला याचा मेसेज ग्रुपवर टाकणार होतात ना? उन्मेष टाकायला सांगतो सरांना. ठीक आहे. हा कुठलेही विचारा, कुठलेही डाऊट विचारा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कुठलेही. सर व्हाट इज डिफरन्स बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट? अभिषेक, पैलेट इज द रूफ ऑफ बकल कैविटी, ये ऊपर वाला पार्ट है. तो आप जरा देखो, ये जो पार्ट है, ये एंटीरियर साइडचा वरचे जे दात आहेत त्याच्या पाठीमागचा पार्ट, त्याला फील करून बघ, तो थोडा हार्ड आहे, त्याला पॅलेट म्हणायचं, तो पूर्ण पार्ट पॅलेट आहे, तो हार्ड आहे. थोडं मागं मागं जा, तो पार्ट सॉफ्ट बनत जाईल. अभिषेक, ठीक आहे. आणि तो सॉफ्ट मागे एकदम मागे जर गेलं तो सॉफ्ट आहे बघ, दॅट इज कॉल्ड सॉफ्ट पॅलेट, आणि पुढचा जो आहे तो हार्ड पॅलेट आहे. एनसीईआरटी रीडिंग पण घेऊया. सर एनसीईआरटी बुक पीडीएफ स्वरूपात मिळाली तर आपल्याला खूप भारी राहील. हा लगेच पाठवतो उन्मेष बेटा, लगेच पाठवतो. टाइप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, 4 ऑर्गेनिज्म है किंगडम प्रोटिस्टा में. क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ. ठीक आहे, ते मी ते सांगितलं पण आहे. क्राइजोडायनो हुआ हुआ, मोल्ड प्रोटोजुआ जुआ, युगलो तूने दिल को छू लिया रे, सब आते हैं प्रोटिस्टा में. सो क्राइजोफाइट्स, dinoflagellates, euglenoid, slime molds, or protozoa. These are the 4 types of group present in kingdom protozoa. Sir, we have vacation for other subclasses from 21st. So what about biology? अर्णव आपका कहाँ पे है दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री? अर्णव, व्हाट इज कॉप्रोफिलस? वाह वाह स्नेहा, वाह कितने अच्छे बच्चे. कॉप्रो मीन्स क्या है? कॉप्रो मीन्स फिकल मैटर. कॉप्रो मीन्स फिकल मैटर और फिलस मीन्स लव. So these are the fungi, actually these are the type of fungi. They prefer to grow on dung. Fecal matter of animal क्या है? Cattle का fecal matter, that is dung, shane. त्याच्यावर ते ग्रो होतात, that's why they are called coprophilous. मैंने हमेशा बोला है कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी. स्नेहा बेटा, कॉप्रोफिलस इटाइमोलॉजी गूगल सर्च करो, आपको मिल जाएगा. कॉप्रो मीन्स फीकल मैटर और फिलिया मीन्स लव. सो दे लव टू ग्रो ऑन डंग, शेणावर ग्रो होतात म्हणून त्यांना माहिती कॉप्रोफिलस फंगाई. सर ऊसपोर रिप्रोडक्शन में किस में होता है? ऊसपोर फंगाई के और भी कुछ सब टाइप होते हैं, उसमें ऊसपोर होते हैं बेटा. ओके, अलग अलग सब टाइप है, उसमें ऊसपोर होते हैं. व्हाट इज बेसिडियम? आगे चल के आएगा कृतिका. बेसिडियम एक स्ट्रक्चर होता है बेसिडियोमाइसिटीज में, उसके अंदर कैरियोगैमी और मियोसिस होता है. ये है. एनसीईआरटी रीडिंग पण सुरू करूया. चैतन्य सुरू करूया एनसीईआरटी रीडिंग पण. ओके सर, बेटर टेस्ट बड आर प्रेजेंट ऑन बेस, बट वेयर एग्जैक्टली? बेस बोले तो पीछे साइड का. एग्जैक्टली बेस बोले तो बेस के सभी साइड पे, बीटर वाले. ओके, बीटर है वो, बेटर नाही, बीटर. लिम्फोइड ऑर्गन काय आहे? काय सिंपल क्वेश्चन आहे अक्षय. लिम्फोइड ऑर्गन म्हणजे असे ऑर्गन आहेत कि जहां पे लिम्फोसाइट बनते हैं. जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, वो आर्मी है, वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट होते हैं. ये 2 सेल जहां पे बनते हैं उस ऑर्गन को कहा जाता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. और फिर यहां से वो दूसरी जगह पे जाते हैं. ओके, यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं और फिर दूसरी जगह पे लड़ने जाते हैं, और जहां पे वो रहते हैं वहां का उसे कहा जाता है सेकंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. सर सिलेटेड प्रोटोझोआ मध्ये मायक्रो आणि मॅक्रो न्यूक्लियस असतात का? यस बेटा. श्रीधर लहाने, 2 बायन्यूक्लियोटेड है पैरामीशियम, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो और माइक्रो. माइक्रो और माइक्रो दोनों न्यूक्लियस होते हैं. सर कैन वी सी द सर्कम वैलिड पैपिले? ऊपर से तो नहीं दिख सकते हमें, ठीक है, पर एक लैरिंगोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. ओके, यहां से डालने के बाद उसको एक लाइट भी होता है, तो वहां हम देख सकते हैं. ठीक है. टेचे फंक्शन काय असतं? टेचे फंक्शन काय आहेत सर? श्रीधर हे कळालं नाही मला. त्याचे फंक्शन काय आहेत का? अरे दे प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है, जो वैक्सीन काम कर रही है वही बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बनाती है, और वो एंटीबॉडीज पैथोजन को किल करते हैं. टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली पैथोजन को किल करते हैं. खलास, मैं आपको समझा दूंगा.
बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बता दूंगा मैं आपको. सर कैन वी सी द circumambulate papillae बिकॉज आई कैन सी सम bumps on the back of the my tongue when I see in mirror. तो हाँ, अगर खूप काय म्हणताय डीपली जर तुम्ही बघत असताल तर तुम्ही बघू शकता, पण क्लिअर कट दिसणार नाही तेवढे. मॅक्रो आणि मायक्रो न्यूक्लियसचं फंक्शन काय, वेगवेगळं फंक्शन आहे एकाचं जे म्हणजे तरी पण एक्झॅक्ट बघून सांगतो. श्रीधर काय प्रश्न विचारला? जस्ट वेट, जस्ट वेट. ओके ठीक है, वो इस रेफरेंस बुक में भी मेंशन नहीं किया है, मैं बताता हूँ. व्हाट इज इनॅमल इरोजन, उसकी झीज होणे मराठी भाषेत सांगायचं झालं तर. ओके सर, थँक्यू. सानवी बेटा, मला खूप जास्त चांगलं आवडलं. सेकंड ग्लुकोज वर्क ऑन कोरोना टू 2GD. हां, ते काम करत, काम करत. घशाजवळ फोड़न, उनमें वो ट्रकियोस्टॉमी होती है, ऐसा होता नहीं है, हर बार ऐसा नहीं करते हैं, हर बार ऐसा नहीं करते बेटा. एट द टाइम ऑफ एंडोस्कोपी देयर आर चांसेस ऑफ लूजिंग कार्डियक पंक्चर और नॉट. लूज नहीं है. कोणी प्रश्न विचारलाय हा? वाह, क्या बात है. शिवानी रोकड़े, बेटा वहां कुछ ऐसे वो जो है अपने आप, उसका क्या है कि कोई भी मटेरियल, चाहे वो फूड हो या फिर दूसरा कोई भी हो, अगर वो इसोफेगस के लोअर पार्ट में जाता है तो अपने आप नेचुरली वो कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होता है अपने आप नेचुरली. तो अगर वो जो प्रोब है इसोफेगस का, जिसपे कैमरा लगा होता है एंडोस्कोपी का, सॉरी एंडोस्कोप का, तो वो जब जाएगा इसोफेगस से कार्डियक स्फिंक्टर की तरफ, तो अपने आप वो कार्डियक स्फिंक्टर खुल जाएगा और फिर हम अंदर स्टमक के अंदर एंटर कर पाएंगे. ओके वेदिका, वाह क्या बात आहे. तिनं प्रश्न विचारला की सर स्टमक मध्ये ऍसिड आहे आणि मग ते ऍसिडिक फूड जर का वॉमिटिंगच्या दरम्यान इसोफेगस मध्ये येतं किंवा माउथ मध्ये येतं तर डॅमेज करतं का? तर ते एकदम डायल्यूट होऊन जातं त्यावेळेस बेटा. एसिड जो ओरिजिनल एसिड सीक्रेट होता है उसका पीएच बहुत कम है, वो बहुत ही हाईली एसिडिक है, पर उसमें बाकी के जो जूस है, वाटर है, वो उसमें मिक्स होके वो बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है, तो इतना हार्मफुल नहीं है. पर अगर ये कंटिन्यूअस हो रहा है ना वेदिका, मीन्स ये 3-4 साल तक उसको प्रॉब्लम है, एसिडिटी एंड ऑल दैट, देयर में बी चांसेस वो डैमेज करेगा इसोफेगस को, डैमेज करेगा इसोफेगस को. पर 1-2 बार में कुछ नहीं होगा क्योंकि वो डायल्यूट है. पर अगर वो 3-4 साल ऐसा एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो देयर में बी चांसेस. सर इन फंगाइज सेल वॉल देयर इज अ काइटिन प्रेजेंट मोर और पॉलीसेकेराइड लेस. मानसी, पॉलीसेकेराइड एंड काइटिन आर सेम. काइटिन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, काइटिन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, काइटिन ज्यादा होता है. अगर आपका क्वेश्चन का आंसर है काइटिन, और काइटिन इज नथिंग बट पॉलीसेकेराइड. कुछ लाइनें ऐसे लिखी है एनसीईआरटी ने कि तो बच्चों में कंफ्यूजन बना देती है. तो काइटिन इज नथिंग बट पॉलीसेकेराइड. सर एसिडिटी का प्रॉब्लम हार्ट को अफेक्ट करता है क्या? करता है ना? नहीं 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 नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट है बेटा.
सांगतो बेटा, हे थोडासा वेगळा कॉन्सेप्ट आहे सृष्टि, कि एसिडिटी का पेन वो भी चेस्ट पेन होता है और हार्ट का पेन भी चेस्ट पेन होता है। दोनों को बहुत सारे लोगों को जब एसिडिटी होता है तो बहुत लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक आया है, पर वो नहीं, वो कभी कभी एसिडिटी से भी इतना ज्यादा पेन हो सकता है कि which looks similar to the heart attack, प्रॉब्लम नहीं होगा। फंक्शन ऑफ इवुला, ये जो मैं बात कर रहा हूं इसकी टोन कुछ लेवल तक मेंटेन करता है, इसके आगे ज्यादा उसका कुछ फंक्शन नहीं है। फंडस में गैस कलेक्टेड, हाउ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम इसोफेगस, ऐसा नहीं है। कैसा है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल है तो कुछ ना कुछ गैस तो रहेगा ना उसमें। तो स्टमक का जो गैस है और हवा जो है ऊपर जाती है, तो इसलिए वो गैस ऊपर आता है। मुझे कहना ये है कि उसमें गैस ज्यादा होता है। ओके, प्लियोमॉर्फिक मीन्स मल्टीपल शेप्ड स्ट्रक्चर। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है मल्टीपल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसके मल्टीपल शेप है उसे कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियो मीन्स मेनी, मॉर्फ म्हणजे एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो प्लियोमॉर्फिक मीन्स a cell or organ having multiple shapes। एसिडिटी में हार्टबर्न होता है क्या? हार्टबर्न मतलब दोस्तों, श्रेया वाह काय प्रश्न विचारला, त्या सिम्पटमचं नाव आहे हार्टबर्न। हार्टबर्न नहीं होता है, उस सिम्पटम का नाम है हार्टबर्न। एसिडिटी में जो सिम्पटम होता है, जळजळ जे होतं ना, ते हार्टबर्न म्हणायचं त्याला। व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन व्हायरस अँड व्हिरॉइड्स? पाटील तुम्हाला सांगतो, व्हायरस म्हणजे, वायरस में दो चीजें होते हैं, एक है न्यूक्लिक एसिड और फिर उसके अराउंड एक प्रोटीन कोट होता है, वो है वायरस। और वीरॉइड में वो प्रोटीन कोट ही नहीं होता है और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है और वो भी आरएनए है, उसे कहते हैं वीरॉइड। एंड दैट वीरॉइड कॉजेस डिसीजेस ओनली प्लांट, दिस इट वीरॉइड कॉजेस डिसीजेस ओनली इन प्लांट। पीएसटीडी नाम का डिसऑर्डर है, ओके, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आगे। तो ये वायरस और वीरॉइड में फर्क है। वैसे बहुत सारे फर्क है, 4-5 है, पर ये मेन है कि वीरॉइड में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, वो भी फ्री। वीरॉइड इज कॉल्ड अ फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, इट इज विदाउट प्रोटीन कोट। सर एसिडिटी क्यों होती है? चैतन्य, जब स्टमक का जो एसिडिक कंटेंट है वो इसोफेगस में आने लगता है बिकॉज ऑफ लूज कार्डियक स्फिंक्टर, और उसकी वजह से एसिडिटी होने लगती है। और उसके कारण फिर लेट नाइट जागणे, खूप जास्त चहा घेणे, हे खूप जास्त स्पायसी फूड, हे त्याचे कारण आहे। सर सम पीपल से दॅट मिल्क अँड टी कॉज एसिडिटी, तेच सांगितलं ना, मिल्क नाही, चहा, चहा, चहा त्याच्यामुळे होतं। म्यूकर माइकोसिस एक डिफरेंट टॉपिक है दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें इम्यूनिटी लो होती है, उनमें हो रहा है। और कोविड पेशेंट में इम्यूनिटी, जिनमें इम्यूनिटी लो है वही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है कोविड पेशेंट में, उन्हीं में ये ज्यादा पाया जा रहा है म्यूकर माइकोसिस, और इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और जब आईज के ऊपर वो अफेक्ट करेंगे, उसमें अगर नर्व या फिर कुछ पार्ट इनर होते तो ब्लाइंडनेस आ सकता है। सर एसिडिटी क्यों होती है? सांगितलं ना। व्हाट इज ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है दोस्तों, पर एक एस्परजिलस नाइजर और नाइगर नाम है उसका। एस्परजिलस नाइगर नाम क्यों है? वो ब्लैक कलर के होते हैं, नाइगर, निग्रो ऐसा शब्द है वो, ओके, दैट इज कॉल्ड द ब्लैक फंगस मे बी। व्हाट आर द ऑर्गेनोट्रॉप्स एंड लिथोट्रॉप्स? ये देखना पड़ेगा, कहां पढ़ा है आपने ऑर्गेनोट्रॉप्स और लिथोट्रॉप्स? Why do polluted water bodies have abundance of nostoc and oscillatoria? कि वही तो मैं बोल रहा हूं, उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, दे ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ना कुछ फर्टिलाइजर होते हैं जैसे कि नाइट्रेट और फॉस्फेट, उसकी वजह से वहां पे अलगी की ग्रोथ ज्यादा होती है दोस्तों। व्हाट इज मीन्स टी पाउडर कॉज एसिडिटी? यस, एसिडिटी एक्सेस रिलीज ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस नी पण होते का? नाही, एक्सेस रिलीज ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस न होऊ शकते, नो डाऊट, पण ते गॅस्ट्रिक ज्यूस
इसोफेगस मध्ये येणं गरजेचं आहे. त्यामुळेच डायटम आर आल्सो इंडिकेटर ऑन व्हाट पोल्यूटेड वाटर, यस, क्योंकि वो पोल्यूटेड वाटर में पाए जाते हैं. ठीक है. नाही नाही, विधी नाही तसं करता येणार नाही. इपिग्लॉटिस ऐसा डैमेज नहीं होता है बेटा. अगर नॉर्मल हेल्दी हम रहे तो ये पूरे जो ऑर्गन है हमारे बॉडी के फुल गारंटी के साथ आते हैं. पर होता क्या है, कभी कभी कुछ फॉल्टी पीसेस में वो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, पर हम ऐसा इतना कुछ उसके साथ उटपुटान चीजें कर देते हैं, हमारा फीडिंग बिहेवियर या फिर हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल दैट, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है. व्हाट इज पैरासाइटिक प्लांट? पाटिल, पैरासाइटिक प्लांट मीन्स, पैरासाइट मीन्स क्या है, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन. तो हमें लगता है कि ऑल प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक, सब प्लांट फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद बनाते हैं, पर ऐसा नहीं है बेटा. हम प्लांट किंगडम में देखेंगे, इसी में देखेंगे कि कुछ जो प्लांट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर न्यूट्रिशन, तो उन्हें कहा जाता है पैरासाइटिक प्लांट. जैसा अमरवेल है, कस्क्यूटा उसे बोलते हैं, वो पैरासाइटिक प्लांट है. सर व्हाट इज, सर मेजॉरिटी ऑफ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर organotrophs or lithotrophs or decomposer or autotrophs? That was the question in test. Decomposer is the answer. Decomposer is the answer. Organotrophs or lithotrophs, मैं समझाता हूँ. लिथो मतलब सॉइल बेटा. सृष्टि, लिथो मीन्स सॉइल, so they derive nutrition from soil. Organotrophs means they derive these are the bacteria, they derive nutrition from organic matter. इस टाइप का होगा, ये शब्द से मैं लगा रहा हूँ. और वो तो डिकम्पोजर है, सैप्रोट्रॉप्स है, सैप्रोट्रॉप्स. थैंक यू सर, ऑल माय डाउट्स क्लियर. थैंक यू विधि फॉर आस्किंग मी, थैंक यू सो मच. आप जब पूछते हो तो मेरा भी नॉलेज बढ़ता है दोस्तों. व्हाई ट्रिपेनोसोमा फॉल अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा? पाटिल यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वो, बस बाकी कुछ नहीं है, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है. नाउ मुझे क्वेश्चन मिल गया है, वो किसने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मिल गया. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, ये किसने पूछा था, है क्या वो? अभी जो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस है, एक होता है बड़ा न्यूक्लियस, उसे कहते हैं मेगा न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस, और एक छोटा होता है मिनी न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस. ये किसने क्वेश्चन पूछा था मुझे? जो मैक्रो न्यूक्लियस है, हाँ श्रीधर, जो मैक्रो न्यूक्लियस है लिखो सब लोग. मैक्रो न्यूक्लियस के आगे लिखो, इट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ. जो फंक्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है या ग्रोथ से रिलेटेड है, वो कंट्रोल करता है मैक्रो न्यूक्लियस. इसलिए ग्रो हो जाएंगे वो, उसे कहा जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस. और जो मिनी न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस है, छोटा वाला, इट कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. क्या कंट्रोल करता है? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. रिप्रोडक्शन कंट्रोल करता है छोटा वाला न्यूक्लियस. रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल द रिप्रोडक्शन, इसलिए वो जो छोटा है माइक्रो न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस. क्लियर? परत एकदा. पैरामीशियम और बायन्यूक्लिएटेड, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं. एक मैक्रो मीन्स मेगा न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो मीन्स मिनी न्यूक्लियस होता है. जो मेगा और मैक्रो न्यूक्लियस है उसका फंक्शन है, क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ. और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और जो मिनी न्यूक्लियस है व्हिच कंट्रोल द रिप्रोडक्शन. इसलिए जो बड़ा न्यूक्लियस है मैक्रो न्यूक्लियस, उसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो छोटा न्यूक्लियस है माइक्रो न्यूक्लियस, उसे रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस बोलते हैं. अलग अलग काम है. डन. आगे
तो मुझे लगता है रुकते हैं, आपका लेक्चर होगा अभी। चलो बाय बाय, टेक केयर। ओके, पढ़ते हैं। थैंक यू, थँक यू. समझ में आया? NCERT नक्की पाठवतो, नक्की. उन्मेष लगेच पाठवतो मी, लगेच.